By treating alkyl halide with Ag, okay, silver nitrite, वो उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, silver nitrite, okay. If we treat it with silver nitrite, then it will give RnO2 plus AgNO, okay. यहाँ पे जो है उसको मैंने कंडेंस करके लिखा है, यहाँ पे बॉन्ड को दिखाया नहीं है, ओके. So again, it will give precipitate of AgBr, silver bromide plus CH3, CH2, NO2. IUPAC नेम बताओ जरा, CH3NO2 का करके भी बोला जाता है ऐसे. Now by ONO, ONO मतलब it was nitro, okay, it is nitro. कंपाउंड जो बनेगा वो alkyl nitro, NO means nitrite, so alkyl nitrite. So if we take CH3 B KNO2, okay, then it will give KBr plus CH3ONO. Remember, always remember, okay. Don't write like NO2. ये जो फंक्शनल ग्रुप NO2, it exists like this. अगर प्रॉब्लम होता है तो ऐसे ही लिखने का प्रैक्टिस करो, ऐसे ही लिखो एग्जाम में. प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन राइट लाइक दिस एंड प्रोडक्ट यू हैव टू राइट लाइक दिस. इसको ऐसे NO2 लिखने से नहीं चलेगा. यू हैव टू राइट लाइक दिस, ओके. ONO. This is nitrite group. Another example, particular example, if we take ethyl group plus KON double bond O, ionic compound, this is negative, this is positive, okay. So it will give again KBr plus CH3 CH2ONO, ethyl nitrite. क्या नाम होगा उसका? ethyl nitrite. Is it clear to everyone? क्या बात, कोई बात नहीं कर रहे, सब थोड़ा माइक वाइक ऑन करो ना. मुझे लग रहा है कि आज हम कोई खाली शमशान पे पढ़ा रहे हैं. सर इसमें डिफरेंस कहाँ आता है? कहाँ पे? ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप ONO और यहाँ पे NO2. देखो डिफरेंस इज हियर नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन, okay. Here the bond is between nitrogen and carbon, and here we have bond between oxygen and carbon. Clear, Sejal? सर कोई रीजन है क्या, मतलब हाँ, बॉन्ड? बिल्कुल बिल्कुल रीजन है. वो पहले दिन जो CN का पढ़े थे हम लोग, हाँ. वैसा ही सेम रीजन, सेम टाइप. ओ अच्छा ठीक है. देखो, उस दिन CN का एक दिन हम बता रहे थे ना, उस दिन उसका थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा. हम बोल रहे थे कि SN2 occurs via लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट. इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उससे SN2 होता है. एंड SN1 occurs via हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. SN1 क्या होता है? पहले कार्बोकैटायन प्रिपेयर हो रहा है, देन the nucleophile, that means the negative part, negative charge substances, okay, generally or which has electron, it will attack the R plus, okay, carbocation. In SN2 what happens? Carbocation, that means the alkyl halide, it remains, okay, and nucleophile attacks from the back side to the carbon and then leaving group will leave. तो जो SN2 में क्या होता है कि वो न्यूक्लियोफाइल के साथ R जो एल्किल ग्रुप का बॉन्ड बनता है, ओके. अब थोड़ा याद करो, Huygens रूल 11 में था, वहां पे क्या था? पोलराइजेशन, ओके. कोवलेंट बॉन्ड मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके. आयनिक बॉन्ड में ऐसे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल नहीं होता है. इट इज बेसिकली अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस. दिस इज आयनिक बॉन्ड, okay. Actually you can say that there is no actual bond between the atoms, just opposite attraction between opposite charge ions, okay. But in covalent bonding there is a bond between two atoms.
orbital of one atom overlap penetrate in the orbital of another atom, okay, then they will form bond. That's why they will form bond. That's why lower electronegative atom always participate in SN2, because lower electronegative atom जो होता है उसको पोलराइज करना इजी होता है. देखो याद करो तरफ हाइड्रोजन रूल कैसे था, पहले ऐसे था, दूर दूर था ना, टू एटम्स, then when they come close to each other तब क्या हो रहा था, and this is cation, this is anion, okay, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा था बुक में, cation ऐसा था, anion क्या होता, धीरे धीरे डिफॉर्म हो रहा था. It was called polarization, okay. Polarization, now one stage what will happen, it will polarize to such extent that it actually penetrates to the orbital of cation. That's why ionic compounds, sometimes ionic compounds are showing covalent properties also, because of this polarization, and due to polarization their orbital overlaps. अब जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा होता था, देखो 11 में थोड़ा सा याद करोगे तो हम देखेंगे कि सिल्वर फ्लोराइड जो होता है, ओके, इट एक्ट्स एज कोवलेंट कंपाउंड, ओके, बट सिल्वर sorry, not silver fluoride, it is ionic compound, and if we go down the group, silver iodide, this is covalent compound. ये almost it is showing covalent property maximum, and it is ionic. This is because of polarization. तो वो बोल रहे थे ना उस दिन कि lower electronegative atom will attack the carbon, alkyl group carbon in SN2 reaction because of the polarization. नाइट्रोजन कार्बन, उसमें कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, so it is more preferable to combine through carbon, क्योंकि उसका जिसका जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसके लिए बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो उतना अच्छा होता है. पोलराइजेशन जितना कम होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं होगा. दैट्स व्हाई SN2 occurs via lower electronegative and SN1 occurs via higher electron. Clear? तो 11 में अगर याद नहीं है तो 11 में जाकर देख सकते हो तुम लोग, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में वो दिया हुआ था. तो हम सोचे थे कि नहीं बताएंगे सब, लेकिन ठीक है बता दिए, देख लेना, ओके. अच्छा, सो दिस इज अ थिंग, नाइट्रोअल्केन and alkyl nitrite, okay, alkyl nitrite compound, okay. Now then तुम लोग के बुक में एक तो इसमें से नहीं है, बता देते हैं जो भी आता है आने में, okay. Now preparation of higher order alkyne. Alkyne means preparation of higher order alkyne. इसका मतलब क्या है, नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन था वो हो गया, प्रिपरेशन ऑफ हायर ऑर्डर alkyne, इसका मतलब एनीवन, नाम से ही पता चल जाना चाहिए तब ना इजी होगा. Preparation of higher order alkyne means we will increase the number of carbon in alkyne. Okay, simple thing. We will in preparation of higher order alkane, higher order alkene, higher order alkyne means we will increase the number of carbon in alkyne. So the smallest carbon is alkyne is acetylene. Okay. Or ethine, this is the smallest alkyne. Now we are going to add carbon to it. This is 2 carbon alkyne, okay. If we want to prepare 4 carbon alkyne, 5 carbon alkyne, we can, okay, by using the method. So first what we have to do, first thing is, this is the alkyne, here 2 steps are there.
First, you have to treat it with sodamide, NaNH2, sodamide. Okay, sodamide, huh? Sodamide. Sodamide. What will happen? It will give, okay, oh sorry, NaNH2, sodamide, sodamide. It will give sodium salt of alkyne, Na plus minus plus NH3, वो बस साइड प्रोडक्ट से साइड प्रोडक्ट के हिसाब से निकल जाता है, बाहर चला गया क्या बोर्ड का, प्लस NH. This is the important thing. This is the important thing. Okay. First, we will prepare sodium salt of alkyne, and then we will treat. This is the first step, and in the second step, तो उसको यहाँ से दिखाते हैं एक बार. CH double triple bond CNA. Now I am writing the alkyl halide like this, XR, ताकि easy हो दिखाने में. Okay, and it will give HC triple bond CR. उल्टा कर दोगे तो RC triple bond CH. तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गया, यहाँ पे था 2, उसके साथ हम लोग ने एक R अटैच किया. R, इट में बी मिथाइल, इट में बी इथाइल, जैसे हम चाहे. So let's take a particular example. C triple bond CH. First, what we do, NaNH2, we will treat it with sodamide. Then it will give C triple bond CNA, and then we will treat it with, suppose we want to substitute the hydrogen by methyl group. If we want to substitute it by methyl group, then we have to take methyl halide. So here I am taking methyl iodide. Okay. So NaI, it will be removed, and it will give CH triple bond C single bond CH3. You can write it in reverse order also. CH3 C triple bond CH. Is it clear? बहुत काम आएगा ये. इसको यूज करेंगे हम लोग कन्वर्शन में, यूज करेंगे. ऐसा भी हो सकता है, one thing. And second thing, if we want to substitute from both sides, okay, ये हो गया number 1. If we want to substitute from both sides, then what will we do? हाँ, तब क्या करते हैं, तब हम ना थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ताकि अच्छा दिखे वो. NH2 Na, एक सोडामाइड लेफ्ट में लिख रहे हैं, and another sodamide in right. दोनों को उल्टा करके लिख रहे हैं. NH2 Na, यहाँ पे इसको उल्टा करके लिखे हम, और यहाँ पे सीधा करके लिख रहे हैं. हाइड्रोजन NH3 NH3, 2 molecules of NH3 removed, 2 NH3 and 2 sodium, one from this side and one from this side. They will attach Na C triple bond C Na, plus minus minus plus. Okay. So now by using 2 molecules of sodamide, or you can say 2 moles of sodamide with 1 mole of acetylene, we can substitute both the hydrogen. If we use 1 mole, okay, if we use 1 mole, then 1 hydrogen will be substituted. Then by treating it with alkyl halide, we will get higher order alkyne. Similarly, if we use 2 moles of NaNH2 sodamide, it will substitute 2 hydrogens. Okay, that means the 2 hydrogens substituted by 2 sodium
एंड देन अब यहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लिख जाएगा कोई बात नहीं. नाउ आई एम राइटिंग लाइक दिस. ओके, CH3 I, so one NaI removed and another I CH3, another NaI removed. So now it means we have to use 2 CH3I. ओके, या तो यहाँ पे लिखो या फिर यहाँ पे लिखो, तो एग्जाम में तुम लोग यहीं पे लिखोगे. ओके, एंड इट विल गिव CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस 2 NaI. ठीक है, हाँ आइडेंटिटी करते हैं. Is it clear to everyone? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है. Yes, sir. थोड़ा माइक वाइक ऑन करोगे तुम लोग, क्यों नहीं ऑन करते हो? ऐसा खराब लगता है मुझे. तुम लोग तो देख रहे हो, मुझे नहीं पता चलता तुम लोग हो भी या नहीं. अब हम पूछेंगे किसी से. लक्ष्मण क्लियर? सर सुन रहे हैं आपकी बातें. कौन? क्लास में तो बहुत बातें करते हो तुम लोग, अभी इतना शांत कैसे करोगे? अच्छा, नाउ वी विल सी. तो सर सेकंड स्टेप नहीं समझ आया. कौन सा इसका? नहीं, ऊपर वाला. इसका ये यस सर. अच्छा, वो तो देखो पहले इसको इसका नाम क्या पता है? इसका नाम है सोडियम, मोनोसोडियम एसिटिलाइट. एसिटिलीन से बन रहा है एसिटिलाइट, मोनोसोडियम एसिटिलाइट. एसिटिलीन का एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी था, व्हेन यू ट्रीट इट विथ कॉपर एसिटिलाइट, जो रेड कलर का होता है. तो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर दिस सोडियम सॉल्ट एंड देन विद दिस सोडियम सॉल्ट वी ट्रीट द एल्किल हैलाइड. ओके, यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, या उल्टा करके लिखे वो समझ में नहीं आया क्या? हाँ सर, अभी ठीक है, उल्टा करके लिखे थे इसलिए अचानक. अच्छा, पहले ये प्रिपेयर हुआ, फिर इसको लेके हम वहां यहाँ पे लिखे एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकंड स्टेप. इसको सिर्फ उल्टा करके लिखे, हमारा कुछ नहीं. R1 ठीक है. ओके, so now we will prepare by using this. जरा करके दिखाओ, देखते हैं कौन कर पा रहा है. Prepare CH3, यहाँ पे दिख रहा है क्या? अगर हो गया तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका. लेफ्ट साइड हम क्लियर करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रैक्टिस करेंगे, उसको ही देख के. हाँ, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो. हो गया तो मुझे बताना. हो गया सर. हो गया. ओके, नाउ सर, हाँ बोलो. वो जो सेकेंड वाला का जो प्रोडक्ट बना है ना, हाँ तो उसमें जो CH सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है. हाँ, बीच जो मिडिल में है वो ट्रिपल बॉन्ड है ना? हाँ तो सर, हाँ तो वो सर, सॉरी कुछ नहीं. हो गया. समझ आ गया? दिख रहा था इसीलिए. अच्छा ठीक है, आप तुम लोग प्रिपेयर करो. CH3 इस इक्वेशन को यूज करना है, इस रिएक्शन का प्रिपेयर करना है. CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसको प्रिपेयर करो. कैसे करोगे?
बताओ मुझे। हेलो, हो गया? लेफ्ट साइड को क्लियर कर रहे हैं? कैसे करेंगे? सो स्टार्ट विथ तुम्हें दिया गया है कन्वर्सन फ्रॉम एसिटिलीन टू दिस। So start with acetylene. So here ethyl and right side we have methyl. Okay. So we will do it in separate steps. अगर एक ही स्टेप में करेंगे, एक ही स्टेप में हम लोग मिथाइल आयोडाइड भी लेंगे, इथाइल आयोडाइड भी लेंगे, तो इट विल गिव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो वो सही नहीं होगा। क्या करेंगे? फर्स्ट treat with 1 molecule of NaNH2. It will give sodium salt Na. Then suppose first we are attaching methyl group, then take methyl iodide. Okay, तो हो गया पहला ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। क्लियर? नाउ इन द सेकंड स्टेप again we will treat with sodamide. We are substituting one hydrogen, so remember always use 1 NaNH2, 1 mole of NaNH2, ज़्यादा नहीं। Okay, so HC Na plus C minus triple bond C and CH3, second hydrogen को भी substitute कर रहे by sodium, and then again we will treat with ethyl iodide. Now we will treat with ethyl iodide. Okay, Na out, and it will give CH3, CH2, C triple bond C, CH3. Clear to everyone? No. No one. प्रिंसिपल सर ही शायद बुलाते थे, वही काम वो लोग भी साफ करते थे। प्रिंसिपल सर शायद हम लोग को बुलाते थे, वो लोग साफ करते थे। हम मुझे चाहे इनके बारे में कभी बोला नहीं, हम किए भी नहीं कभी। पता नहीं सर, पता नहीं सर, एकेडमिक के बारे में कभी हम किए नहीं कभी। Is it clear to everyone? अरे कुछ तो बताओ। हेलो, देखो कोई कुछ बोलता नहीं है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना?
हेलो सर आवाज सुनाई दे रहा है। तो कुछ तो बताओ, कोई क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे नहीं बताओ तो कैसे चलेगा? कैसे क्लास करवाएंगे? सब चुपचाप रहोगे तो समझ में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ये जानबूझ के सब ऐसा कर रहे हो? कोमल हो गया? सर बोलो आदेश। इथाइल हाइड्रेट और इथाइल हाइड्रेट एक साथ क्यों नहीं ले सकते? बोलो एक साथ क्यों नहीं लिए? एक साथ देखो क्यों नहीं लिए, अगर मान लो दोनों को हम एक साथ ले लेते है ना, और यहाँ पे इसके जैसा हम लोग इफ यूज 2NaOH इसके जैसा अगर हम लोग करते तो यहाँ पे 2 सोडियम को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसके बाद अगर हम लोग एक ही साथ मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड यूज करें तो प्रॉब्लम क्या होगा? तो विल हैव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा हो सकता है कि पहले दोनों साइड में मिथाइल लग गया, क्योंकि मिथाइल भी है वहां पे आयोडाइड, है ना। अगर हम ज्यादा लेंगे, दोनों साइड में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुका है, दोनों साइड में ऐसा अगर हम लोग दोनों को एक साथ करना चाहते तो प्रॉब्लम क्या होता? अगर मिथाइल आयोडाइड ऐड कर रहे हैं इसमें, ओके, और इथाइल आयोडाइड भी ऐड कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट हो सकता था कि दोनों सोडियम मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाए। One. Another possibility, both the sodium substituted by ethyl group. 2. And third one, this. So we will get mixture of products. So to avoid this, first substitute the methyl group by methyl group and then substitute by ethyl group. Clear Ashish? सर हाँ, सिर्फ ये रिएक्शन सिर्फ एसिडिलिन के लिए ही होगा। सिर्फ एसिडिलिन के लिए ये रिएक्शन करवाएंगे आप। क्योंकि क्यों एसिडिलिन के लिए क्यों? बिकॉज दिस हाइड्रोजन इन एसिटिलिन इट इज एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, इट इज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिलिन shows acidity. Ethylene, ethane, they are not showing acidity. Okay, but acetylene shows acidity. That's why we can use acetylene. We can prepare higher order acetylene by this reaction. इथिलीन को नहीं कर सकते हम लोग, ओके, इथेन को नहीं कर सकते ऐसे बाय दिस रिएक्शन। ओके ओके, नाउ इफ वी वांट टू प्रिपेयर, अच्छा इसको क्लियर करें, इफ वी वांट टू प्रिपेयर द सेकंड वन CH एसिटिलीन टू, अब हम एक साथ कर सकते हैं। अब हम जो देने वाले हैं, now we can prepare in a single step. देखो देखना क्या है तुम्हें कि दोनों साइड में जो सब्स्टिट्यूट है वो दो ग्रुप सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो दो अलग अलग स्टेप्स में करना है हम लोग, एंड इफ इट इज सेम, बोथ आर सेम, इथाइल ग्रुप, नाउ वी कैन परफॉर्म द रिएक्शन इन अ सिंगल स्टेप। फर्स्ट सब्स्टिट्यूट बोथ द हाइड्रोजन बाय सोडियम by treating with sodamide, taking 2 moles of sodamide, and then taking 2 moles of C2H5I or CH3CH2I, we can substitute 2 sodium by 2 ethyl groups. Okay? तो इसके लिए हम कर सकते हैं, इसके लिए हम एक ही साथ कर सकते हैं, बट अगर प्रीवियस के जैसा रहे तो हम वैसा नहीं करेंगे। CH triple bond CH. Now we are taking 2 NaNH2 because we have to substitute the hydrogen by क्या? इथाइल ग्रुप्स। देखो कन्वर्सेंस में ना यही मेन चीज है, क्या है और क्या लाना है वो तुमको देख के समझना। Here we have hydrogen and we have to substitute both the hydrogens by ethyl group. Okay? तो क्या करना है वो तुम लोगों को प्लान करना है, और ऐसे नहीं होता है जब घर में पढ़ोगे, खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा समझोगे तब होगा। ऐसे हम सिर्फ बता दिए, तुम देख लिए, फिर घर में जाके सो गए, वैसे नहीं होगा। घर में जाके प्रैक्टिस करोगे, ओके, तभी होगा, है ना। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट बाय सेम ग्रुप्स, तो इसके लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा कम है। तो फर्स्ट
डाइसोडियम एसिटिलाइड प्रिपेयर कर दिया हम लोग, प्लस प्लस माइनस माइनस, ओके, ऐसे आयनिक कंपाउंड होता है वो। हाँ, नाउ वी कैन ट्रीट इट विथ 2 ethyl iodide groups, because we have to substitute the sodium, both the sodiums by ethyl group। तो हम लोग एक ही साथ एक रिएक्शन कर सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने दिखाया है, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 2CH3CH2I, ऐसे लिख के फिर प्रोडक्ट लिख सकते हो, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3। IUPAC नेम बताओ उसका। यहाँ पे IUPAC नेम बहुत जरूरी है। क्यों? तुम्हें बोला गया है प्रिपेयर कन्वर्ट एसिटिलीन टू 1 2 3 4 5 6। इसका IUPAC नेम बताओ जरा। हम पूछते हैं कौन प्रेजेंट है, हमें तो दिख नहीं रहा है क्योंकि हम स्क्रीन को पूरा एक्सपांड करके रखे। राजमान है? हेलो राजमान। नहीं है राजमान। ठीक है, सजल बोल रही हेक्स 3 आई है तो राजमान है। बताओ राजमान का नाम बताओ, IUPAC नेम। मिथ इट प्रोब्यूट पेंट हेक्स एंड आइन पोजीशन 3, सो हेक्स 3 आइन। तो तुम लोगों को सजल सही बोलिए YNE, तो ऐसा IUPAC नाम के हिसाब से दिया जा सकता है। ओके, convert acetylene to hex 3 ion। If you don't know IUPAC nomenclature, then how will you do it? पॉसिबल नहीं है, मुश्किल होगा बहुत। IUPAC नेम से तो हमें स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। अगर IUPAC नेम नोमेनक्लेचर ठीक से नहीं आता है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो फिर रिएक्शन कैसे कंप्लीट करोगे? नहीं होगा। दैट्स व्हाई IUPAC नोमेनक्लेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहले मतलब 11 में हम बहुत इसलिए बार बार बोलते थे तुम लोगों को। तो आज यही तक, इसको पढ़ो, इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लो घर में अच्छे से, फिर नेक्स्ट डे इसी के जैसा कुछ करेंगे रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन बाय SH, दिस इज कॉल्ड thiol group, and SR, this is thioether। ओके, thioether, सल्फर को थायो ग्रुप बुलाया था, थायोएथर। इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे एंड देन एडिशन रिएक्शन वो पढ़ेंगे। क्योंकि इसको थोड़ा समझाना था ज्यादा, इसलिए टाइम लगा, इसमें शायद उतना नहीं लगेगा, और लगेगा तो लगाएंगे।